My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, we will discuss CSS, that is Cascading Style Sheet. Okay, Cascading Style Sheet. So basically, what is CSS? Okay, so Cascading Style Sheet is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language such as HTML. Because जब भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं, like we write some sort of code in HTML form, HTML, then we design a web page, and for such web page, if you want to make some changes, if you want to give some style to those particular web pages, then we have a described language, that is cascading style sheet. With the help of this style sheet, we can basically describe the presentation of a document. Means you can change the color, you can give the background color, you can give the background to those particular web page, and you can set different changes. You can make different changes in those particular web pages what you have designed using HTML or such or other kind of markup languages. Okay, तो generally यहाँ पे हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, और उस HTML के वेब पेज में whatever changes you want to make, with the help of this cascading style sheet, you can basically create a code and you can apply in those particular HTML code. So you can make changes, you can describe the presentation of a document and so on. Okay, आगे डिस्कस करते हैं. ओके, तो CSS बेसिकली क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है, राइट, ऑफ द www अलोंगसाइड बेसिकली कॉर्नर स्टोर बोल सकते हो आप. कॉर्नर स्टोर टेक्नोलॉजी है किसकी? वर्ल्ड वाइड वेब की, या फिर आप बोल सकते हो अलॉन्ग विद जावास्क्रिप्ट एंड HTML. क्योंकि HTML में क्या होता है, for world wide web we require some sort of web pages or we require some sort of websites. So with the help of HTML, basically we design a web page, right, and we apply some sort of validation or conditions. With the help of JavaScript, we use some sort of scripting techniques, and if you want to make some sort of changes, if you want to if you want to change the presentation of a document, with the help of, like, you can apply some sort of color, you can apply some sort of style, you can apply some sort of background. Okay, with the help of this style language, you can make changes to those web pages, right. तो CSS बेसिकली एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है. इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. ओके, एंड इट प्रोवाइड द पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. मीन्स आप क्या कर सकते हो CSS का यूज़ करके. ओके, आप क्या कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशंस को क्या कर सकते हो, और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो. यू कैन मेक पावरफुल कंटेंट. क्योंकि क्या होता है कि जब विजुअलाइजेशन इज़ नेसेसरी, आप अगर अपने वेब पेजेस के कंटेंट को या अपनी वेबसाइट के कंटेंट को आप विजुअलाइजेशन उसका जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी उसको इफेक्टिव रखोगे, तो उससे क्या होगा, यूज़र्स को या क्लाइंट्स को क्या होगा, उससे ज़्यादा इंटरेक्शन मिलेगा, और वो यूज़र्स ज़्यादा इंटरेक्ट करने को पसंद करेंगे उस पर्टिकुलर वेब पेजेस पर. क्योंकि जब आपका वेब पेज ही इंटरेक्टिव होगा, तो और आप वेब पेजेस की प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए या इंटरेक्टिव बनाने के लिए कैन ऑल्सो अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्टाइल लैंग्वेज, राइट. तो why do we use CSS? Basically CSS saves time, obviously, क्योंकि आपको क्या करना, क्या, you can write a CSS code once and then you can reuse that particular same code in different HTML pages, right. No need to write again and again that particular कोड्स. बिकॉज क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स पर अगर हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, तो CSS का कोड एक सिंपल सा कोड होता है, और उस कोड को आप कहीं पर भी अप्लाई करो, इट विल बेसिकली अफेक्ट दोज पर्टिकुलर एलिमेंट और एट्रीब्यूट, और इट विल ऑल्सो अफेक्ट ऑन दोज पर्टिकुलर टैग्स. इट विल अफेक्ट टू द होल डॉक्यूमेंट्स. ओके, ईजी मेंटेनेंस. आप क्या कर सकते हो, अपने CSS कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हो. ठीक है. टू मेक ग्लोबल चेंज, सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल द एलिमेंट इन द ऑल द वेब पेज विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली, राइट. क्योंकि क्या होता है, इसमें आपका एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, इनलाइन सपोर्ट होता है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक बार चेंज करो ग्लोबली, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली चेंज करा सकते हो. नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्च इंजन्स, राइट. अब इसमें क्या है, क्योंकि CSS बेसिकली क्या है, इज कंसिडर्ड a clean coding technique, which means search engine will not have to struggle to read its content. क्योंकि ये जो हमारा CSS स्टाइल लैंग्वेज है, जो कोड है, वो इफेक्ट डालता है, या तो आप पर्टिकुलर लाइन पे इफेक्ट डाला सकते हो कोड के, या फिर आप पूरे होल HTML प्रोग्राम पे आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो. तो ये क्या है, एक सिंपल सा कोड है, इसमें आपके सिंपल से टैग्स गिवन है. आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा स्टाइल टैग का यूज़ करके यू कैन अप्लाई द चेंजेस, और यू कैन मेक चेंजेस टू दोज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग, राइट. तो ये सिंपल सा एक कोड है, जिसको क्या, इसमें क्या होगा, क्या सर्च इंजन को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कंटेंट को रीड करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस इसका कोड सिंपल है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोडिंग नहीं करनी पड़ती है,
राइट। दूसरा है सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, ठीक है। इसका क्या है, इसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं ऐसे CSS के पास, ठीक है, HTML से भी ज़्यादा। ओके, तो इससे क्या होता है, अपने HTML पेज को बेटर लुक दे सकते हो, ओके, इन कंपैरिजन टू HTML एट्रीब्यूट्स। HTML पेजेस जो हैं वो भी क्या करते हैं, आपके CSS के कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके ट्राई टू मेक चेंजेस, ठीक है। तो CSS के पास HTML से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके यू कैन मेक योर पेज मोर अट्रैक्टिव और यू कैन क्रिएट अ बेटर लुक टू योर HTML पेजेस। जनरली है क्या, CSS बेसिकली हमारे एक स्टाइल लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस में क्या कह सकते हैं, उनका प्रेजेंटेशन यानी वेब पेजेस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है यानी जो व्यू होता है, अब उनको यू कैन मेक बेटर प्रेजेंटेशन और यू कैन मेक इफेक्टिव लुक ऑफ दोट पर्टिकुलर वेब पेजेस बाय मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑफलाइन ब्राउजिंग। आप क्या कर सकते हो इसमें, CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ एन ऑफलाइन कैश। तो आप क्या कर सकते हो, कैश मेमोरी की यूज़ करके ये क्या आप क्या कर सकते हो, CSS स्टोर करता है क्या वेब एप्लीकेशन को लोकली में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यू कैन ऑल्सो यूज एज ऑफलाइन ब्राउजिंग, ओके, CSS कैन बी यूज एज फॉर ऑफलाइन ब्राउजिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास CSS सिंटैक्स, ओके। हम CSS को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। CSS का एक अपना रूल है जिसमें एक उसके पास अपना सेलेक्टर्स होते हैं, ओके। इट कंप्राइजेज बेसिकली सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम CSS के कोड को, तो उसमें एक पार्ट में हमारा सेलेक्टर होता है, सेकंड अदर पार्ट रिप्रेजेंट डिक्लेरेशन ब्लॉक, राइट। और देन बेसिकली सेलेक्टर जो होते हैं वो पॉइंट करते हैं टू द HTML एलिमेंट। ये जैसे H1 है, हेडिंग टैग है, तो इससे क्या होता है हमारा, ये HTML का है एलिमेंट है, यानी HTML का टैग है और वी कॉल इट एलिमेंट। तो इसको बोले हम सेलेक्टर, जिस पे आप अपना इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, जिस पे चेंजेस अप्लाई करना चाहते हो, जो CSS जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो, तो हम लोग क्या कर, उसको हम सेलेक्टर बोलते हैं। एंड देन डिक्लेरेशन, उस सेलेक्टर्स पे क्या इफेक्ट डालना है आपको, वो आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक में आता है। जैसे H1 हेडिंग पे मैंने कलर रखा है ब्लू, ओके, और फॉन्ट साइज रखा है इसका 12 पिक्सल्स, राइट। So this is how you can make changes. You can create a syntax of CSS for HTML element, right? Next आता है हमारे पास डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स बेसिकली वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे, तो इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे ये विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके अपने इनको सेपरेट किया हुआ है दो पार्ट में, ठीक है, डिक्लेरेशंस को, ठीक है। तो इट कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, ओके। हर एक डिक्लेरेशन के पास क्या होगा, अपना अपनी प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू होगी। जैसे वहां पे मैंने लिखा कलर, तो कलर का प्रॉपर्टी क्या थी, उसका कलर का नेम, ओके। ऐसे यहाँ पे अगर साइज था तो साइज का प्रॉपर्टी क्या थी, साइज, वट एवर, जैसे 12 पिक्सल्स दिया हुआ है वहां पे, तो इट इज बेसिकली डिफाइंड बाय प्रॉपर्टी एंड नेम, ओके। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन कैन ऑल्सो बी सेपरेट विद द सेमीकोलन, है ना। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। मतलब क्या, अगर आपको मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन करने हैं किसी पर्टिकुलर, अगर आपको सेम आपको रखना है, सेम चेंजेस रखने हैं, यानी कि आपको क्या करना है, सेम कंटेंट को शो कराना है, सेम इफेक्ट डालना है, तो वो सेम इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप सपोज करो जैसे P है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अगर मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन रखने हैं और इफेक्ट डालना है, तो आप क्या करें, जैसे कलर, आप P, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इनको ब्रेसेस के अंदर भी रख के आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक बेसिकली मेक चेंजेस। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन, मल्टीपल CSS, ओके। और ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपको मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल एलिमेंट पे रखना है, तो जैसे सपोज करो मैंने पैराग्राफ लिया, मुझे हेडिंग पे भी डालना है चेंजेस, हेडिंग 2 पे भी चेंजेस करना है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली इस तरीके से आप जैसे कलर, मैंने क्या कि ग्रीन रखा है यहाँ पे, उसके बाद मैंने टेक्स्ट ले लिया, इसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन मैंने रख दिया इसका, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक चेंजेस टू योर वेब पेज, ओके। जैसे मैंने टेक्स्ट अलाइन रखा, जिसमें मैंने क्या रख दिया, सेंटर, तो ये क्या होगा, इन तीनों चीज़ों पे ये इफेक्ट डालेगा, इन तीनों पर्टिकुलर एलिमेंट, तीनों एलिमेंट्स पर। दिस हाउ यू कैन ऑल्सो मेक क्रिएट, यू कैन मेक चेंजेस टू योर वेब कंटेंट, ओके। यहाँ पे P इज द सेलेक्टर, कलर इज द प्रॉपर्टी, ग्रीन इज द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड टेक्स्ट अलाइन इज द प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, इसके मल्टीपल है, मल्टीपल स्टाइल्स हमने अप्लाई किए हैं किस पे, P पैराग्राफ पे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास CSS सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जो हमारे चेंजेस, जिन पे हम लोग चेंजेस अप्लाई करते हैं।
तो CSS सेलेक्टर आर यूज टू फाइंड और सेलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट नेम, ID, क्लास, एट्रीब्यूट्स एंड मोर। यानी कि हम लोग CSS के जो सेलेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, HTML के एलिमेंट्स को फाइंड करने का काम करते हैं। यानी कि जैसे मैंने P लिया हुआ था तो P मेरा एक सेलेक्टर्स है, तो P हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराग्राफ को, वो कि फाइंड करेगा HTML के एलिमेंट्स को, यानी कि P, और P फाइंड करता है क्या, और यू कैन कॉल इट्स बी सेलेक्ट करता है क्या, पैराग्राफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ या तो उसका नाम से, ID से, क्लास से, या एट्रीब्यूट से, या फिर अदर थिंग्स। ओके, तो इसी बेस पे क्या है, CSS को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल सेलेक्टर्स हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है यूनिवर्सल सेलेक्टर्स, ठीक है, ठीक है, रादर देन सेलेक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप। अगर जरूरत नहीं है कि आपको स्पेसिफिक टाइप का एलिमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने बताया ना, अगर मैं पैरा P की बात करूँ तो P का मैंने कोई P सेलेक्ट कर लिया सेलेक्टर एज अ सेलेक्टर, और इस पर मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं P को ना, मैंने सोचा H को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मुझे ये सब सेलेक्टर्स नहीं सेलेक्ट करने, अगर मुझे नाम नहीं याद है बाई चांस, है ना, आपको नहीं पता है वो किस पे अप्लाई करना है, तो और आप क्या करो, सीधे आप क्या करो, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर लो। मतलब क्या है, स्टार, this is universal selector. This is how you can make changes to all those selectors. Okay, if you don't know the name, or if you don't know the name of a specific type, specific selectors. Next आता है हमारे पास element selector, right? The element selector basically select the element based on the element name. आप जिस टाइप का सेलेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हो उसका नेम से उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन बेसिकली अप्लाई द चेंजेस, और यू कैन मेक द चेंजेस। ओके, अप्लाई द इफेक्ट ऑफ CSS, राइट। तो एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है, हम स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। ओके, जैसे यहाँ पर है ऑल P एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑन अ पेज, ठीक है। तो विद द ऑल P एलिमेंट विल बी सेंटर अलाइंड विद अ ग्रीन टेक्स्ट कलर। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है कोड, अगर मैं P सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, जितने भी उस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट्स में, HTML कोड में जितने भी P नाम के एलिमेंट्स होंगे उन पे ये क्या करेगा, इन सब पे ये चेंजेस अप्लाई कर देगा। क्योंकि अगर मैंने अभी स्पेसिफिक उस पर नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक नेम लिया है और मैंने कोई स्पेसिफिक लाइन पे सेलेक्ट नहीं किया है। कर्ली ब्रेसेस क्या है, मल्टीपल सेलेक्टर्स को इस तरह वर्क करते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन मेक चेंजेस। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर। ओके, बेसिकली इट इज यूज्ड when the developer want to apply a style rule to a particular element only. उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अप्लाई करना है विच लाई इनसाइड अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट किसी एलिमेंट के अंदर है, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर O नाम का एक एलिमेंट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, हमारा O नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है। यानी एक एलिमेंट ये है 1 और एक एलिमेंट मेरा ये है, और आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, सेकेंड वाले एलिमेंट पे कलर अप्लाई कर रहे हो। तब हम लोग किसका यूज करते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। तो हम उन सेलेक्टर्स को क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर, राइट। द नेक्स्ट वन इज ID सेलेक्टर। ओके, फॉर ID सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूज ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। जब भी आप HTML के कोड को लिखते हो देन यू गिव नेम, यू गिव IDs, ओके, एंड तो विद द हेल्प ऑफ दीज IDs, विद द हेल्प ऑफ दीज नेम, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई और सेलेक्ट द एलिमेंट, और यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द टैग, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ ID सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है, इसमें सेलेक्ट यूनिक एलिमेंट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हैश का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैश पैरा का मतलब है दिस इज अ यूनिक एलिमेंट, ओके। जिस विद द, तो इससे क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक ID है, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस पर चेंजेस अप्लाई करते हैं। तो दैट्स व्हाई इन फॉर ID सेलेक्टर बेसिकली वी यूज हैश, ओके, हैश। द क्लास सेलेक्टर्स, नेक्स्ट इज द क्लास सेलेक्टर। द क्लास सेलेक्टर बेसिकली सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। जिस ID में ID के एट्रीब्यूट से हम लोग स्पेसिफिक ID एट्रीब्यूट से सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, हम लोग वी बेसिकली सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, ओके। तो टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक क्लास वी यूज पीरियड, यानी डॉट कैरेक्टर, वी यूज पीरियड, दैट इज डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। यहाँ पर क्या है, वी यूज हैश कैरेक्टर्स फॉलोड बाय द ID, ओके। तो दिस इज द सिंटैक्स, पीरियड यानी डॉट, एंड देन ये आपका डॉट है, देन पैरा, फिर उसके बाद उसका स्टाइल, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, ओके। ग्रुपिंग सेलेक्टर इज बीइंग यूज्ड टू ग्रुप मल्टीपल सेलेक्टर। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा आपको मल्टीपल सेलेक्टर्स को आपने क्या किया, ग्रुप किया, जैसे मैंने प्रीवियसली एक एग्जांपल दिया था, ओके,
ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो मैंने क्या किया, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग एंड P के हिसाब से देखें तो उसमें हमने तीनों पे सेम स्टाइल अप्लाई किया। अगर आप सेम स्टाइल अप्लाई कर रहे हो मल्टीपल एलिमेंट पर, देन नो नीड टू राइट सेपरेट स्टाइल फॉर एवरी हेडिंग और टू फॉर एवरी दैट इज प्रॉपर्टी, ठीक है। नो नीड टू राइट द बेसिक सेम स्टाइल फॉर एवरी सेलेक्टर्स, राइट। आपको जरूरत नहीं है कि सभी एलिमेंट्स के लिए आप सेपरेट कोड को, अगर सेम ही स्टाइल आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, सेम प्रॉपर्टी और सेम वैल्यू का यूज करके, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हो। दिस इज नोन एज ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास टाइप ऑफ CSS। हमारे पास कितने टाइप के CSS होते हैं हम लोग ये भी देखते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ CSS विच आर गिवन बिलो, ओके, और 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग स्टाइल शीट। किस तरीके से आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट पे, HTML कोड पर स्टाइल शीट यानी कि CSS अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारे पास इनलाइन, यानी कि आप एक पर्टिकुलर लाइन्स पर क्या कर सकते हो, CSS अप्लाई कर सकते हो, स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इंटरनल और एम्बेडेड CSS, यानी कि आप इंटरनली अप्लाई कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड पर, ओके। थर्ड वन है आपका एक्सटर्नल, यानी कि आप एक एक्सटर्नल फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हो, CSS को अप्लाई कर सकते हो अपने लाइन ऑफ कोड पर। तो फर्स्ट वन इज इनलाइन। तो इनलाइन CSS बेसिकली जैसे बता, एज अ नाम सजेस्ट और बेसिकली वी कैन कॉल इट, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसमें बॉडी बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर हर एक लाइन पे आपको कोड अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन पे, देन यू कैन यूज इनलाइन CSS और उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके उसी पर्टिकुलर लाइन पर रहेगा। नेक्स्ट और मतलब रेस्ट ऑफ द कोड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, राइट। तो दैट्स वाई वी यूज इनलाइन CSS बिकॉज हमें क्या करना है, जनरली वी अप्लाई पर्टिकुलर स्टाइल ऑन पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, ओके। तो यहाँ पे क्या है, it contains the CSS property in the body section attached with element in is known as inline CSS, okay। तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करते हैं ना पर्टिकुलर लाइन। जैसे कि आपको P पैराग्राफ में मैंने स्टाइल अप्लाई किया हुआ कलर और फॉन्ट साइज, ओके। नेक्स्ट वन इज इंटरनल और एम्बेडेड CSS, ठीक है। दिस कैन बी यूज व्हेन अ सिंगल लाइन HTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टाइल्ड यूनिकली, राइट। हमें क्या करना है कि एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, आपको यूनिकली स्टाइल करना है, ठीक है। तब हम लोग इसका यूज करते हैं इंटरनल और एम्बेडेड CSS। मैंने क्या कहा, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को, राइट। तब हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरनल, ओके। तब इसमें क्या होता है, हम लोग हेड सेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं और वो क्या होता है, वो पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, मैंने क्या किया, ये एक स्टाइल टैग लिया हेड सेक्शन के अंदर, एक क्लास के नाम से मैंने क्या किया, उसको अप्लाई किया पर्टिकुलर क्लास पे, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोड को। तो मैं पीरियड का यूज़ करता हूँ, अगर मैं क्लास से यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने अभी पढ़ा था क्लास सेलेक्टर्स, उसी हिसाब से तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर को अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर पे, तो इट विल रिफ्लेक्ट टू द होल सिंगल HTML डॉक्यूमेंट, ओके। इनलाइन लाइन ऑफ कोड, लाइन पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन पे, और इंटरनल एम्बेडेड CSS बेसिकली सिंगल HTML डॉक्यूमेंट पर, होल डॉक्यूमेंट पर, यानी मल्टीपल लाइन ऑफ कोड यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि एज अ नेम सजेस्ट, एक्सटर्नली हम लोग क्या करते हैं, CSS को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं टू द HTML डॉक्यूमेंट, राइट। इसमें क्या होता है, कंटेन सेपरेट CSS फाइल। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट CSS फाइल हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं अलग से, जिसमें पूरा स्टाइल लिखा होता है, यानी पूरा कंटेंट लिखा होता है CSS का, एंड देन उस फाइल को हम लोग एक्सटर्नली से मतलब उस फाइल को उठाकर हम लोग एम्बेडेड कर देते हैं उस पर्टिकुलर HTML फाइल पर, राइट। तो जो फाइल हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो बेसिकली जनरली उसमें सारा कोड किसका होता है, स्टाइल का ही होता है, यानी स्टाइल प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ टैग एट्रीब्यूट्स, राइट। CSS प्रॉपर्टी रिटेन सेपरेट फाइल विद .css एक्सटेंशन, यानी कि हम लोग जब भी CSS फाइल को सेपरेटली बनाएंगे और हम उसको सेव करते हैं तो हम कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, वी यूज .css extension, okay, and then this particular file should be linked with the HTML document using link tag। मतलब क्या है, एक्सटर्नली अगर आपको CSS अप्लाई करना है देन डेफिनेटली यू विल यूज लिंक टैग टू मर्ज, okay, to link or to merge that particular .css यानी CSS file with the HTML document, and href basically it provides a reference, it gives the reference to the location where the file is stored, okay। तो this is the syntax for external CSS। head link का हमने tag का use करेंगे and then we give name to the style sheet
and then href represent that particular style sheet, okay, location of that particular style sheet, and then head tag. Okay, this is how you can apply your external CSS, right? How to import CSS comments? Comments are used to explain the code and may help when you edit द सोर्स कोड एट द लेटर टाइम. मतलब आपने क्या किया, कुछ कमेंट लिख दिया जिससे क्या हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे कि जब भी आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, एडिट करते हो, तो आपको याद रहे कि हाँ यू हैव राइट अ कमेंट उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ, मतलब उस पर्टिकुलर लाइन पे जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा आप उसके थ्रू क्या कर सको, उसको रिमेंबर कर सको, उसके थ्रू क्या कर सको. अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो देन यू कैन ईजिली मेक चेंजेस, क्योंकि अगर आपने वो कोड वो लाइन लिखी हुई है तो वो एज अ कोड तो रीड होगी नहीं, वो एज अ कमेंट रीड होगी. और कमेंट हमेशा क्या होते हैं हमारे बेसिकली इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय द ब्राउजर्स. ब्राउजर उसको कोड मान के नहीं चलता है, जस्ट इग्नोर. तो इससे क्या होता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें याद रहे कि चीज़ें किस तरीके से हैं. तो हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या, एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो कमेंट्स हमेशा हमारे इससे ऐसे स्टार्ट होते हैं एंड देन उसका एंडिंग इस तरीके से होता है. जो भी कोड इन दोनों के बीच में लिखा होगा वो हमारा कमेंट कहलाया जाएगा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास CSS कलर्स. अब CSS कलर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या, CSS कलर्स बेसिकली स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम्स, क्योंकि CSS के पास अपने स्पेसिफिक कलर्स के नेम है, ओके, या उसके हेक्साडेसिमल कोड हैं जिनका यूज़ करके बेसिकली यू कैन अप्लाई द कलर्स टू योर CSS स्टाइल. ओके, एंड दोज पर्टिकुलर कोड आर गिवन बाय RGB रेड ग्रीन ब्लू, हेक्साडेसिमल और स्मॉल ऑफ हेक्साडेसिमल, RGBA, okay, and then SSLA values. With the help of these values or hexadecimal values, we can give colors to your style or we can give colors to your attributes, right? जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है, पहला है हेक्स कोड, इसमें सिंटेक्स इसका RRGGBB है, मतलब अगर मैं देखूँ तो ये मेरा RRGGBB इस तरीके का ये सिंटेक्स होता है टू गिव कलर्स कोड. शॉर्ट हेक्साडेसिमल कोड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं इसको, यानी रिप्रेजेंट करता है सिंगल. ओके, RGB का हिसाब, अगर RGB को अप्लाई करना है देन you can use percentile or you can give values. Okay, this represent red, green and blue. Red, green and blue, यानी red, green and blue. Okay, कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हो, एक्वा, ब्लैक, इन सब टाइप के कीवर्ड यूज सकते हो, ऑरेंज. ओके, दिस इज हाउ यू कैन गिव कीवर्ड ऑल्सो ऑफ कलर्स. ओके, द नेक्स्ट इज बैकग्राउंड कलर. Okay, if you want to apply background color to your HTML document or HTML page, okay, then you will use style and you will use background color, this particular attributes. Okay, with the help of this field you can apply the background the color to your background. जैसे यहाँ पर है style का यूज़ किया हमने और हमने क्या किया, उसको background color का यूज़ किया and then mention the color name. तो क्या होगा, ये पर्टिकुलरली उसको उस पर्टिकुलर हेडिंग्स पर बैकग्राउंड में क्या कलर दे देगा, कौन सा, दिस वन, डॉजर ब्लू. ओके, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द बैकग्राउंड कलर टू योर हेडिंग, टू योर पैराग्राफ एज वेल, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट कलर, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें टेक्स्ट पे भी कलर अप्लाई करना होता है. तो यू कैन सेट द टेक्स्ट कलर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल एंड देन डिफाइन द कलर डॉजर ब्लू. बॉर्डर कलर भी ऐसे ही आप कर सकते हो, बस यू हैव टू राइट बॉर्डर and then you can give background image as well. So this property basically specify क्या, an image to use as a background of an element. ठीक है, तो by default क्या होता है, image is repeated so it covers the entire element. ठीक है, तो how to insert images to your in the background of your content. So आप क्या कर सकते हो, आप obviously body पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको whole document पे अप्लाई करना है, तो this how you can create, तो background image दिस एट्रीब्यूट, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का यूज करो एंड देन यू कैन गिव द वैल्यू. ठीक है, यानी उस इमेज का लोकेशन और उस इमेज का स्पेसिफिक नेम, URL. तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द इमेज टू योर बैकग्राउंड, राइट. नेक्स्ट आता है हमारे पास CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट, यानी कि अगर आपको बैकग्राउंड में कोई अटैचमेंट ऐड करना है, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गिव बैकग्राउंड अटैचमेंट. मतलब क्या है कि स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड. ओके, मतलब उस अटैचमेंट को आपको स्क्रॉल करना है, फिक्स रखना है, वो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो. जैसे यहाँ पे कुछ कोड है, आप यहाँ देख सकते हो. बैकग्राउंड इमेज में मैंने एक इमेज दी, रिपीट मैंने रखा, नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं करना, पोजीशन में मैंने रख दिया उस इमेज का राइट टॉप पर और अटैचमेंट में फिक्स कर दिया, तो वो स्क्रॉल नहीं होगा. ऐसे आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, यानी आप इस तरीके से अपने बॉर्डर भी बना सकते हो पर्टिकुलर के लिए, स्पेसिफाई बेसिकली विड्थ. ओके, CSS border properties allow to specify the style, width and color of an element's border.
ठीक है, यानी अपने एट्रीब्यूट्स को, एलिमेंट्स को आप बॉर्डर भी अप्लाई करा सकते हो, जिसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के सिंटैक्स हैं बॉर्डर अप्लाई करने के, जैसे कि इसमें डॉटेड बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप डॉटेड बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। आपके पास डैश बॉर्डर है, आप डैश भी लगा सकते हो, इस तरीके से डैश बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। सॉलिड, आप पूरा एक सॉलिड बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, इस पर्टिकुलर का यूज़। डबल बॉर्डर में आप डबल बॉर्डर लगा सकते हो इस तरीके का यूज़ करके, राइट। ग्रुप करा सकते हो अपने बॉर्डर्स को, सिंपल सा, थोड़ा डैश रहेगा, थोड़ा सा डैश रहेगा ये, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रिज बॉर्डर भी लगा सकते हो। इनसेट बॉर्डर, जिसमें क्या होगा, आपका ऊपर का टेक्स्ट थोड़ा ब्लड रह जाएगा और ये वो होगा, ऐसे आउटसाइड में आपका ये वाला ब्लड रह जाएगा, ठीक है, और ये टाइट होगा। नन, कोई बॉर्डर नहीं लगाना है, हिडन बॉर्डर रखना है जो दिखे ना। एंड सेकंड वन, मिक्स, आपको मल्टीपल टाइप के, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे सॉलिड कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, डॉटेड 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 बॉर्डर कर दिया। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन गिव बॉर्डर्स टू योर HTML document, or you can apply the border to your HTML document with the help of CSS. So this is all about CSS, okay. With the help of CSS, basically you can give representation, or you can give presentation to your HTML document, okay. You can make changes to your document, you can basically make effective look to your document, okay. Thank you everyone.